Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, so viewers, students, and pupils. Today I'm here to teach you about the spoken English, about the English. In Pakistan, if you think that it's a big problem that the students they are mostly asking about that they cannot speak in English. Why we cannot speak in English? Even we know that we have done our master or bachelor, even our FSc or FA, each and everything that is in English. But when the thing is comes like when you have to talk in English, you can't do that, and the reason is behind that you don't have the practice. Because of that you know English, but you can't speak English. And today I will teach you in this Infinitive Training Institute. This is for Institute of Infinitive Training Institute, and we are trying to teach the students at especially the languages. So in the first language, I will teach you about the English. And today I'm going to tell you very important about the English, and that is very different from the people who are here in Pakistan. Like they are studying or like they are learning. Today I'm going to tell you in my first lecture, and the name of my lecture is that English is a game of verb. So let me tell you guys, let me tell you students, that if you know the verb very well, you can speak English very well, because English is not such a big deal, such a big problem. It's very easy, but the problem is that we don't know about the verb. English is not the game of tenses. Tense is almost tense, okay? It can pretends you nothing else than that. If you want to speak in English, you should think about the verb. So let me tell you some example, and I will tell you something in Urdu with you guys also. And in that example, I will tell you that why I am telling that English is a game of verb. When we are speaking English, we do mistakes only in verb, because we know each and everything in English, but the verb we actually doing mistakes are here. How I'm saying like that we do the mistakes in here? I'm teaching from a long time, and when I teach to my student, and especially when I talk them like stand up and tell me what you have done yesterday. So they reply me in this kind of situation or sentences. They tell me, sir, yesterday I get up early in the morning, then I go to college, and then I do my work, then I come back, and then I prepare myself. Okay. Now, whatever you told, that is quite right. Yesterday you get up early in the morning, but this is not get. You got up early in the morning. Then you go to the college or school. No, you went to the college and school. When we are talking in English, we actually forget that how and where to use the verb. This is the main thing. Like, let me tell you some example from Urdu or also in other languages, that when we are talking even the other language, we also do mistakes in verb. I will just give you an example, and that example about the people who speak Pashto. I belong to my native language is Pashto, so that's why I know that's how to talk in Pashto. अगर कभी आप पश्तो में सुने और आप पठान से बात करें, तो वो अक्सर आपको ऐसे लगता है कि यार पठान को मुज़क्कर और मुअन्नस की तमीज नहीं होती, वो मुज़क्कर और मुअन्नस में गलती करता है. That is not something like that. पठान को ये पता चलता है कि ये लड़का है और ये लड़की है, वो जानता है कि ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है, but where he or she does the mistake, लेकिन वो mistakes कहाँ करता है, पठान हो या पश्तो बोलने वाली हो, वो verb में करता है. Let me tell you example of that. Like कैसे करता है वो कहता है कि मैंने चांद देखी, बहुत प्यारी लग रही थी, वो बस बहुत तेज चला गया. अब देखो यहाँ पे अगर इसको देखो, मैंने चांद देखी, आपका देखी गलत है. अगर वो कह देता कि मैंने चांद देखा तो ठीक हो जाएगा. सो द मिस्टेक्स ऑफ देखना, सी और सीइंग, वॉच और वॉचिंग, दैट इज वर्ब. वो यहाँ पर भी वर्ब भी मिस्टेक करता है. जब पठान वर्ब में मिस्टेक करता है तो मुज़क्कर और मुअन्नस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. लेकिन जब हम वर्ब में इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हैं तो टाइम में प्रॉब्लम होती है. एंड द टाइम इज एक्चुअल द टेंस. टेंस के मायने ही टाइम के हैं. सो अगर आपको कभी अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको टेंसेस याद नहीं करने. यू विल हैव टू थिंक अबाउट द वर्ब. सो लेट मी टेल यू टुडे दैट व्हाट इज वर्ब एंड हाउ वी डू लाइक वर्ब. जब हम किसी से पूछते हैं यार वर्ब क्या होता है, तो वो कहते हैं जी एन एक्शन और व्हाट इज लाइक दैट. इस वर्ब का वन वर्ड मीनिंग है वर्क. क्या मतलब है? ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है काम, वर्क. अगर आपने लैटिन में बात करनी हो तो हम कुछ इस तरह से बात करेंगे, और जनाब सुनाएं आजकल क्या वर्क कर रहे हो. यार कोई वर्ब नहीं मिल रहा, एक फैक्ट्री में वर्क कर रहा था, उन्होंने निकाल दिया, अब वर्ब ढूंढ रहा हूं. बिकॉज द वर्क, यही एक्शन वर्ड्स जो होते हैं यही वर्ब कहलाते हैं. इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट अक्सर हम फिर स्टूडेंट से पूछते हैं कि बच्चा बेटा बताओ, लेट मी टेल दैट्स हाउ मेनी फॉर्म्स we have a verb. वो हमें कहते हैं सर 3 फॉर्म है, go and gone. 3 फॉर्म्स हैं, लेकिन आज मैं today I will tell you that a verb, एक वर्ब जो होता है
उसकी पॉसिबल 6 शेप्स हैं। कितनी है? 6 शेप्स ऑफ वर्ब में आज आपको बताऊंगा कि कौन सी 6 सिर्फ जो है 6 शेप्स हैं। इसकी गो है, वेंट है और गॉन है। दीज थ्रीज आर परफेक्ट, लाइक ये चेंज नहीं होती। गो ही रहेगा, वेंट रहेगा, गॉन रहेगा। लेकिन जब हम गो से फर्स्ट वर्ब होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ आप कमोबेशी कर सकते हैं। मसलन गो से गोज हो जाता है, हमने ईएस लगाया। गो के साथ हमने आईएनजी लगाया तो गोइंग हो गया। इसके साथ हमने टू लगाया शुरू में तो टू गो हो गया। हम वेंट्स या वेंटिंग नहीं कह सकते, हम गॉन्स या गॉनिंग नहीं कह सकते, इट विल बी रॉन्ग। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि ये 6 शेप्स हैं। और याद रखिए, जब हम बच्चों से पूछते हैं सर कौन सी फॉर्म्स है, तो वो हमें जवाब देते हैं सर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दिस इज नॉट द नेम ऑफ द वर्ब्स, दिस इज इट कैन बी द आइडेंटिफिकेशन बट नॉट द वर्ब नेम्स। इनके नाम नहीं होते। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, लाइक अगर किसी के 7-8 बच्चे हैं तो क्या कहते हैं, 2 नंबर कहां गया यार, 4 नंबर को बुलाओ, 5 नंबर को भूख लगी, ऐसे थोड़ी होता है। उनके नाम होते हैं। अगर हम उनको पुकारे भी कि बड़ा है, छोटा है, मंझला है, इट्स समथिंग एल्स। लेकिन फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट फॉर्म। अब प्रेजेंट फॉर्म से हमें पता चलता है कि वी कैन यूज दिस फॉर्म इन अ प्रेजेंट सेंस, not a tense. I'm talking about the sense because sense is very important in the language. अगर मैं went की बात करूं तो इसको हम कहते हैं past form। नाम से ही जाहिर है कि went जो है वो past में लगेगा, went कभी भी present में नहीं होगा। If I say, जैसे मैंने आपको कहा, तो आपने कहा था yesterday I got up, then I went, then I did, then I, उसके बाद है third form gone। ये past participle है। थर्ड फॉर्म भी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है और ये भी पास्ट में यूज होता है। लेकिन याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म, देखिए फर्स्ट फॉर्म के कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, सेकंड फॉर्म के साथ भी हेल्पिंग वर्ब भी आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब भी थर्ड फॉर्म की बात आएगी तो आप हैव, हैज, हैड और विल या शैल हैव, इसके बाद जब भी आप बोलेंगे तो इसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। These are the helping words of the past participles. Don't forget when you're talking about the yesterday, I went to college. यहां कोई नहीं था, लेकिन अगर आपने gone कहना है तो आपने कहना I have gone to, I have gone to, she has gone to, she had भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये यहां हो जाएगा। और याद रखिए एक और चीज इसके लिए, परफेक्ट के जितने भी टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सब के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है और इसका सेंस पास्ट में जाता है। व्हेन आई विल टीच यू द सेंसेस, जब मैं आपको सेंस पढ़ाऊंगा, देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज, हाउ इंपॉर्टेंट इज गॉन। एक जगह पे और भी लगता है गॉन, थर्ड फॉर्म एक जगह पे और भी लगती है, और वो है पैसिव। पैसिव क्या होते हैं? वी विल डिस्कस in our 7 or 8 lecture that what is passive and how to talk in passive, because we Pakistani guys cannot speak in passive. We can just only do one thing, that we can make passive from active sentences, लेकिन passive में बात कैसे करते हैं we don't know about that. Now the third one, this is going. Going is almost incomplete sense of speaking. Incomplete sense यानी इसमें कुछ काम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, sense incomplete है, और इसको हम gerund form कहते हैं। present, past, past perfect और gerund form। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि if you want to use the third form, so you will have to think about here कि सबसे ज्यादा जो helping verb होते हैं वो किसके साथ होते हैं? going के साथ होते हैं। मसलन is, am, are, you will have to put these is, am, are before the going, then was, then were, then will be and shall be। ये will be और shall be के साथ भी आप बता सकते हैं। अब ये देखें कि is, am, are the helping verb for present, तो जब जो इसके साथ आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जो इसके, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि ये जो थर्ड फॉर्म है, सॉरी टू से, ये तमाम परफेक्ट टेंसेस में लगते हैं। शायद मैंने बताया भी हो, बट आई थिंक सो दैट्स के यू विल हैव टू नोट ओवर हियर, बिकॉज़ दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर कि ये परफेक्ट टेंसेस में लगते हैं। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होंगे जिसके साथ कंटीन्यूअस का आएगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज, एम, आर, आईएनजी, वाज, वर, पास्ट कंटीन्यूअस, ये दूसरा टेंस हो गया। विल बी एंड शैल बी गोइंग, दिस इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये देखें, ये टेंसेस भी हैं। इसके बाद जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस के और टेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। वो परफेक्ट और
प्रेजेंट से मिलके जो टेंसेस बनते हैं उसमें से हम क्या करते हैं कि यहां के हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी कि हैज एंड हैज लगा देते हैं, ये जितने भी हैं हैव हैड इसके साथ बीन लगा देते हैं, हैज बीन, और आगे लगा देते हैं गोइंग, यानी आगे हम लगाएंगे जेरंड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसके आगे भी यानी हैज बीन, हैव बीन, ये दो हो गए, हैड बीन, ये पास्ट के लिए हो गए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और विल या शैल हैव बीन, ये दोनों जो हैं ये हो गए आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, ये हम ऐसे यूं लगाते हैं। अब ये देखिए कि व्हाट आई एम एक्चुअली टीचिंग यू इवन द टेंसेस आल्सो। आप टेंसेस कैसे करते हैं? आप करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आप करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और फिर आप करते हैं प्रेजेंट एंड सो ऑन। लेकिन आज के बाद अगर आपने कभी टेंस करने हो, इफ यू वांट टू डू द टेंसेस, डोंट डू द टेंसेस इन दिस सीक्वेंस बट डू द टेंसेस इन दिस सीक्वेंस व्हिच आई एम नाउ टेलिंग टू यू। आप सबसे पहले फॉर्म उठाएं, गो, आपने गो उठाया, गो के साथ गोज है। आप देखिए कि गो कितने टेंसेस में यूज होता है? दो टेंसेस में यूज होता है। कितने टेंसेस में यूज हो रहा है? दो टेंसेस में। कौन कौन से टेंसेस हैं? प्रेजेंट का टेंस है, और इसमें से प्रेजेंट का टेंस कैसा होता है ये हमारा चौथा लेक्चर है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के सिंपल टेंस में यूज होता है। फ्यूचर के साथ हम विल और शैल लगा लेते हैं, आई विल कम, आई विल गो, आई विल सी, आई विल टीच एंड सो। और इसके अलावा ये प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में गो भी होता है और गोज भी होता है। यू बेटर नो दैट हाउ वी पुट द गो एंड हाउ वेयर वी पुट द एसईएस फॉर्म विद एसईएस फॉर्म, यानी ही शी इट और नेम के साथ आप ये लगाते हैं। उसके बाद आप आ जाए वेंट। This is the only verb which used in only one tense. ये सिर्फ एक टेंस में यूज होता है, और वो टेंस है पास्ट का सिंपल टेंस, जिसको आप पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और इसमें हम सब पास्ट की बातें करते हैं। और ये गोन जो है ये तीन टेंसेस में यूज होता है। कितने में? तीन टेंसेस में। और ये तीन टेंसेस कौन से हैं? परफेक्ट के, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये जो आईएनजी वाली फॉर्म्स हैं ये 6 टेंसेस में यूज होते हैं। कितने टेंसेस में यूज होते हैं? एंड यू बेटर नो दैट वी हैव ओनली 12 टेंसेस, कि हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। दो ये हो गए, एक ये हो गए, 3 और 3 6, और ये 6 टेंसेस हो गए 12। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हिच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड मोर इन फॉर्म्स। आप कहेंगे कि सर आईएनजी, या आप कहेंगे कि सर टू गो, लेकिन नहीं। टुडे आई विल टेल यू दैट वी यूज्ड मोर द थर्ड फॉर्म इन टेंसेस। जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि ये सिर्फ इन 3 टेंसेस में भी नहीं होता, पैसिव के भी 8-9 टेंसेस में यूज होता है। इसी तरह 8 अगर वो कर ले और 3 ही कर ले, क्योंकि पैसिव्स के अपने टेंसेस होते हैं। और टू गो, वी पाकिस्तानी गाइस डोंट नो अबाउट टू गो। दिस इज इन्फिनिटिव और बेस फॉर्म। ये 12 के 12 टेंसेस में यूज होता है। ये कैसे यूज होता है? आई हैव अ लेक्चर ऑन दिस आल्सो, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस लेटर ऑन। बट टुडे आई जस्ट टोल्ड यू, आज आपको मैंने सिर्फ बताया कि इफ यू वांट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश यू शुड नो अबाउट योर वर्ब। आपको अपने वर्ब को ठीक करना होगा। वर्ब ही वो चीज है कि जो कि आपके टाइम को चेंज करता है, आपके टाइम को शो करता है। देखिए हम जब किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि सर बेटा आपने कल क्या किया, तो वो जो मुझे जितनी भी 3-4 बातें बताता है, मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं जब इनकी इंग्लिश चेक करता हूं तो वो देखिए आपको पता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट उठने को कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग में तो गलती नहीं हो सकती ना, सुबह को तो आप मॉर्निंग ही कहेंगे, उसको इवनिंग नहीं कहेंगे। आई में गलती नहीं होगी, अपने आप को आई कहेंगे, ही शी इट नहीं कहेंगे। गलती कहां होती है? वर्ब में होती है। यू जस्ट इवन स्पीक समथिंग, आप खुद कुछ बोले और उसके बाद खुद ही मुआयना करें, सो यू विल सी दैट यू डू द मिस्टेक्स इन वर्ब। व्हाई आई टीच दिस lecture, the first why I put, you can say that's why I put lecture 1 गेम ऑफ द वर्ब। हालांकि मुझे आपको पहले बताना चाहिए था कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। आई विल टेल दैट दीस थिंग्स इन द सेकंड लेक्चर, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक चीज बता दी बेटा, जिसे वर्ब आ गया, लेट मी टेल यू वंस अगेन वेरी क्लियरली, जिसे वर्ब आ गया उसे इंग्लिश आ गई। वो इंग्लिश में मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं व्हेन वी इवन राइट समथिंग वी डोंट नो कि हाउ टू पुट दीस वर्ड्स एंड वेयर टू पुट दीस वर्ब्स, सॉरी, कि वर्ब्स को कैसे लगाने, कहां लगाने। अगर आप वर्ब में गलती नहीं करते हैं सो आपकी तकरीबन 70 to 80% गलतियां खत्म हो जाती हैं। बाकी एडवर्ब एडजेक्टिव में वो गलतियां नहीं होती। एडवर्ब आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता।
आपको बाकी चीजें vocabulary, you are thinking about the vocabulary, doesn't matter about vocabulary, don't learn too much vocabulary. जितनी इंग्लिश आपको आती है, try to speak on that words the way I am speaking. I am not using a kind of dictionary word. मैं कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज कर रहा, but I am using. देखिए जैसे मेरे मुंह से निकला I am, तो मैंने ing वाले फॉर्म लगाए. I am using क्योंकि मुझे पता है is am are. This is a formula, and in my 7th lecture I will teach you the 7 formula of English. Remember about this lecture, 7 formula of English. जिसको ये 7 formula आ गए, जिसको ये वर्ब की पहचान आ गई, he or she can speak very well English. So guys, I think it is enough for today. And the second lecture, wait for the second lecture. In the second lecture, I will teach you that why we Pakistani cannot speak English, why we cannot talk in English.